Four questions of D4. Okay, I anyone was else? also able to give 4 in day 4. Okay, so let's start today's PCD. So is my screen visible? Okay, so let's start with the first question. So in the question, it says that you are given n toffees and three friends. You have to divide all these n toffees among the three friends equally. And so first, suppose we are given n toffees. We can, if n is divisible by 3, that is n modulo 3 is equals to 0, then they are equally divided. So the maximum and the minimum will always be equal. Am I right? Yes. So if they are equal, then obviously max minus min will always be equals to 0. This is case 1. And in case 2, they are not divided equally. Suppose there are 7 toffees. Then each of the friends will get 2 and one person will get an extra toffee. Only one extra toffee. And suppose it is divided into, suppose you are given 8 toffees. Then 2 friends will get extra toffees. One will get one less toffee. Okay. So always the max minus min here is always 1, because they will either one or two friends will always get only one extra toffee, not more than that. So is it understood what I was trying to explain? Hello, am I audible? Yes. So Understood. is it understood what I was trying to explain? Yes, yes. Okay, so let's look at the code. So if n is divisible by 3, then it will always be 0, or else it will be 1 as per our solution. So is there any doubts in the first question? No, no. Okay, so now let's go to the second question. Okay, so in the second question, you will be given a positive integer n, and you have to find the largest positive integer a, which is always less than or equals to n and greater than or equals to 1, and it is a perfect square. So suppose you are given 10. Here you are given n equals to 10. So what is the square root of 10? 3.1 something, right? So to get a perfect square, you will always need an integer, right? So here I will only take the integral part of the square root, which is 3. And if we do 3 square, then it is 9. So this will always be the largest positive integer a, which is less than or equals to n, and it is a perfect square because we have taken this only the integral part of the square root. Is it understood what I was trying to explain? Or should I take another example? Understood. No, it was. It was unclear. Okay. So suppose you were given a integer No, it n, was which is clear. okay. It was clear. Okay. So let's look into the code. So here I have taken the square root of n, and I have only taken the integral part of the square root. So the answer will be the root square, which is the largest positive integer. So is the code clear? Is the code clear to everyone? Yes. Okay.
So now let's go to the third question. Okay, so in the third question, you are given two integers, which is x and y. So, and you have to find, okay, so you have to make x and y such a way that their common divisor must not be 1. It should be either greater than 1 only. So you can do either one of the operation, which is you can increase the x by 1 at a time or y by 1. So you need to find the minimum number of operations to achieve your goal. So do any of you have any approaches for this question? Can any of you share your approach? First of Hello? all, if xy, Yeah, there is a GDC of xy other than 1, then it's already the answer will be 0 because no new steps needed. After that, we will check that if we increase one of them by 1 or 1, if the JDC is still um, 1, then we'll proceed further and just bring 2. yeah, okay, Because this is okay. Continue. because of think of it as this way. If there are two odd numbers, then if we increase both by 1, it will always have a common divisor as 2. Yeah, okay, this is a Or correct approach. Okay, so this is a correct approach. So suppose we have two integers here, x and y, and we have to either make, we have to try to make both of them even so that the GCD will always be greater than or equals to 2. So suppose here in the first case, you are given 2 and 4. They are already so there are three cases. The first case is that the GCD of so the GCD of the x and y is already greater than 1. That is one case. So as it is already greater than 1, 0 operations are required to achieve our goal. So if they are not, if it is not already greater than 1, then we have to increase either x or y. So there is two cases. If this is not possible, there are two cases. It's either that both of them are odd or only one of the element is odd. If only one of the element is odd, we will increase the odd integer by 1. Suppose you are given 2 and 3. So if we increase 3 by 1, then it will be 2 and 4. So its GCD will be equal to 2, which is not equals to 1, right? It is greater than 1. Or there is another case where both of them, so here you only needed one operation, which is you needed to increase the odd number by 1. But what if you have both odd numbers? Then we have to increase both the odd numbers by 1. So here it requires two operations. So here here the GCD is 2, which is not equals to 1. So what I'm trying to say is here we need two operations. So we either require in the first case, if the GCD is already greater than 1, then the number of operations required is 0. Or if there is only one odd number, then we will increase only the odd number by 1. It will only require one operation and it will always be greater than or equals to 2, the GCD. And if both are odd numbers, then we have to increase both the elements by 1, which will make both of them even. So if the numbers both are even, then obviously GCD will be greater than or equals to 2. So is it understood? Is this approach understood by you guys? Yes, yes. Okay. Is there any other is there any doubts in the approach? No. Okay. So now let's look at the code. Here I have given you three cases where GCD is already greater than 1. So you require 0 number of operations. But
what if one is odd? The second case is that one of the number is odd. So you have to increase the number by one to make it even. So then you only require one operation. So we will output it as one. Or there is the third case where both the numbers are odd. So you have to increase both the numbers by one. So you require two operations. So this is the code. Is this code understood by you guys? Yes. Okay. So, Kaustav will be explaining the rest of the questions. Okay, so how many of you have tried the fifth question? I only Fourth read the question. fifth question. Okay, have you tried? Fourth or fifth? Yeah, I didn't hear it. The fourth is not done to me. Okay, okay. Here is the fourth question. How many of you have tried the fourth question? Okay, Utkarsh or Shubham, or any approach in the fourth question? Okay, first let me explain the question. The question says that you have an array of consisting x number of zeros, y number of ones, and z number of twos. Your task is to rearrange the I mean zeros, one and twos in such a way that any two consecutive on addition of any two consecutive numbers, the result will be greater than equals to 2, and it is for all from 1 to the up to the last element. For any two consecutive number addition, it will have to be greater than equals to 2. Input, there is 30 number of test cases, and the three integers are there, x, y, and z. And you have to output to print either yes or no. I mean, is it possible to rearrange in such a way or not? Like if you can see the test cases, like there are zero number of one, zero is one, number of one is one, and numbers two is zero. Then it is never possible because let's say here, if one zero and one is there, then you can never be like make this value two or something. Let's took another test cases where it is possible. Second test case or third one, two, zero and one. Let's say that two zero, number of one is zero and one two. How can you do this? If you can do zero, two and zero, then it is addition of any two consecutive numbers. It is greater than equals to two. Or here it is everything. If everything is one, like one zero, one and one two, it is very possible because if you do like for one zero, you have to counter it. So zero, two, and one. If you do this, if this two addition it is two, this two addition it is three, so it is satisfied. So any is the question clear? Yes, Bhaiya. Okay, so how have you thought of solving it? Yes, Bhaiya. If we see that if the number of one is zero, then it can be 0 2 0 2 0 in this formation. Okay, Hence, the please number of explain again. Tell again. Bhaiya, if the number of ones is zero, that Uh, is y is equal to zero, then we can put the array like 0 2 0 2 0 2 in this way till mhm, zero. So we can have at max of less than means z must be
greater than x minus means equal to greater than equal to x minus 1. But if the number of ones is more than 0, then it can be only greater than less than equal to x, because at last it will be 0, then there will be stream of ones. So 0 and 1 won't add up to 2. That's why. Else no. Yes, exactly correct. So let me explain the cases. क्या मैं बोल सकता हूँ? देखो, केस वन ले लिया, मान लो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो जो है वो एक्स क्या है, एक्स नंबर ऑफ जीरो है ना, नंबर ऑफ जीरो इक्वल्स टू जीरो। और वहाँ पे देखो, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज दिया हुआ है कि number of x plus y plus z is always greater, I mean, greater than equals to 2. So if x is 0, so another y or z, the number of 1 or 2, uh, someone will be surely be there. Like if it is 0, then either it is 1 or it is 2, it is 2, it is 1, something like that. So it's saying that if x is 0, then नाम जीरो कुछ है ही नहीं हम लोगों के पास, तो क्या है, हमारे पास सारे एक है और सारे दो है। तो मैं इनका कैसे भी कॉम्बिनेशन बनाऊं, एक या दो का, तुम जो भी चाहे कॉम्बिनेशन बनाओ, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि हमेशा ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा कि एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर का एडिशन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। इज दिस क्लियर? ओके, लेट्स सी केस 2 व्हाट यू सेड, अभी भी जो बोल रहा मैं, ये नंबर ऑफ वन इक्वल्स टू जीरो, नंबर ऑफ वन क्या था, वाई इक्वल्स टू जीरो, मतलब वाई था ना। अगर ये जीरो हो गया तो मेरा हमेशा अप्रोच क्या रहेगा, स्टार्टिंग में जीरो दूंगा और ऐसे टू, स्टार्टिंग में जीरो ऐसे टू, मतलब जीरो टू जीरो टू करूंगा, फिर स्टार्टिंग में जीरो फिर ऐसे टू। मैं क्यों मान लो टू जीरो नहीं करूंगा, मान लो ऐसा हो गया टू जीरो, मतलब यहाँ पे अगर नंबर ऑफ एक एक जीरो हो गया ना, तो मतलब प्रॉब्लम होगा। सो आई विल बेसिकली ट्राई टू, मान लो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो इक्वल्स टू 3 है ना, तो मैं यही चाहूंगा ना कि मिनिमम कितना, मतलब नंबर ऑफ टू में ये पॉसिबल हो सके ऑप्टिमल के लिए। तो मैं देखूंगा कि इनके बीच में जितना जीरो होगा उसके बीच में, क्योंकि मैं क्या कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी, वाई इक्वल्स टू जीरो में मतलब नंबर ऑफ वन पे है ही नहीं, तो मैं हमेशा यही चाहूंगा कि जो जो जीरो होगा उनके बीच में जीरो करूंगा, ऑप्टिमल यही चाहने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे मान लो जितने भी जीरो हो जाए, तो एक्स का मतलब, मान लो एक्स का कुछ वैल्यू होगा, नंबर ऑफ जीरोस का कुछ वैल्यू होगा, और नंबर ऑफ टू जेड का भी कुछ वैल्यू होगा, तो इसका मैक्सिमम क्या होगा, मतलब जेड का मैं मिनिमम कितने नंबर ऑफ टू से मैं इसको सेटिस्फाई कर सकता हूँ। मैं क्या ये बोल सकता हूँ, मतलब अगर यहाँ पे 5 जीरो रहता, मान लो एक और जीरो दे दिया, तो हमेशा क्या नंबर ऑफ टू इज लेस देन नंबर ऑफ जीरो। मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि नंबर ऑफ टू, आई मीन जेड, इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू एक्स माइनस वन, or you can say that z, I mean anything, z plus 1 is greater than equals to x. Both is same exactly. So is this clear? Ram or Utkarsh, I mean, is the case too clear? Yes, bro. Okay. Now, so now see case 3, what you said that if we have any any number of one, I mean number of 10 is not zero, at least one number of one is there. So what can you say? I mean, there is at least one, right? Let's see, does this? Let's write this. It's one greater than 60. If at least one is there, what can I say? Like यहाँ पे क्या हुआ था कि मैं एक नंबर ऑफ टू, मेरा ऐसा हो सकता है कि मैं नंबर ऑफ ऐसे क्या कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे कोई एक नहीं था, तो क्या कर रहा था, नंबर ऑफ टू, मतलब नंबर ऑफ जीरो से
एक नंबर कम से भी, नंबर ऑफ 2 से भी मैं एक कम मतलब इसको फुलफिल कर रहा था, बिकॉज देयर इज नो वन, सो मैं इसको बीच बीच में एक्स्ट्रा मतलब प्लेस कर रहा था. ओके, now we have at least one, like there is let's take similar case like this 0 0 0, like minimum one is there. So let me think exactly the same. There was 3 0, there is also 3 0, but one is there. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं कैसे कर सकता हूँ, एक बार सोचो. यहाँ पे हमको कितना 2 चाहिए, ताकि मैं नंबर ऑफ 3 कितना, 0 कितना है 3, और यहाँ पे मेरे को मिनिमम कितना नंबर ऑफ 2 चाहिए बताओ, ताकि इसको मैं सेटिस्फाई कर सकूं. पिछले बार एक कम 2 से भी हो गया था नंबर ऑफ 2 का, इस बार मिनिमम कितना चाहिए. 3 चाहिए। हाँ वही बात है, मिनिमम मेरे को 3 चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं मतलब हो सकता कि पिछले बार क्या हो रहा था, एक 2 से मैं दो साइड में उसको मतलब एक्सप्लेन मतलब ये कर रहा था, एक 2 से दो 0 को सेटिस्फाई कर रहा था, लेकिन यहाँ पे हो ही नहीं सकता. तो मिनिमम मेरे को जितना 0 है मिनिमम उतना 2 तो मेरे को होना ही पड़ेगा. तो यहाँ पे मिनिमम जेड का वैल्यू कितना होगा, जेड को मिनिमम एक्स तो होना ही पड़ेगा, उससे ज्यादा होगा तो भी चलेगा. तो क्या ये 3 केसेस क्लियर है? Okay. So let's go to the code. यहाँ पे ऐसे बोला गया कि 3 नंबर ऑफ टेस्ट केसेस है, एक लूप लगा रहा हूँ वो पे. वर्ड सॉल्व फंक्शन में क्या है, एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल है. अगर पहला केस क्या था, अगर एक्स इक्वल से 0 होगा तो यस होगा ही होगा, मैंने जो देखा था. तो सेकंड केस क्या था, अगर नंबर ऑफ 1 इक्वल्स टू 0 हो गया तो जेड प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक 2 कम से भी मैं सेटिस्फाई कर सकता हूँ. लेकिन यहाँ पे मेरे को उतना मिनिमम चाहिए ही चाहिए. तो अगर y ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम आई नीड एक्स नंबर ऑफ मतलब मेरे को 2 चाहिए. नंबर ऑफ 2, नंबर ऑफ 0 एटलीस्ट सेम होना चाहिए, अगर 2 बड़ा होगा तो भी चलेगा. तो ये तीनों केसेस में यस हो गया, और एस जो भी केस रहेगा वो नो होगा. सो इज द कोड क्लियर? ओके. So how have you tried the fifth question or यस any सर, आई हैव ट्राइड बट कोड नहीं लिख पाए। okay a question have you understood the question? यस यस अंडरस्टूड। Okay. हाँ समझ में आ Okay, तो फिर से वो एक्सप्लेन करते हैं इसको. तो क्वेश्चन में बोला गया है कि एक तुम्हारे पास बेसिकली दो एरे है, नंबर ऑफ ए और बी है. नंबर ऑफ मतलब दोनों 1 से लेके n तक, यहाँ पर भी ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, बी के भी नाम में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है. और बी पे यहाँ पे b1 b2 करके टोटल n इवेंट्स हो गया, और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स ये हो गया. और ऐसे बोला गया है कि मतलब आई टाइप का, बी आई टाइप का सारे इवेंट होगा, उसके बाद ही हम बी आई प्लस वन पे जा सकते हैं. यही बोला गया कि आई इवेंट्स मतलब सारे होगा, उसके बाद ही आई प्लस वन में जाएंगे. और फॉर एन इवेंट टाइप, एक टाइप में इतना इवेंट हो सकता है, मतलब वन टाइप के लिए इतना इवेंट, टू टाइप के लिए इतना इवेंट, एन टाइप के लिए इतना इवेंट. तो हर एक इवेंट के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो ये था इसके लिए उसको वैल्यू को एक बढ़ा सकता हूँ, या फिर मैं दूसरों किसी को मतलब दूसरे किसी को टू से ऐड कर सकता हूँ. समझ में आया? I mean, up to this is this clear? Remaining player, okay. हमको बोला गया है कि ऐसे नोट दैट द चॉइस इंडिपेंडेंटली हर बार मतलब चॉइस मेड होगा, और यू कैन मेक डिफरेंट चॉइसेस फॉर इवन फॉर डिफरेंट इवेंट्स ऑफ सेम टाइप. फॉर ए बेसिकली इट सेज दैट फॉर वन इवेंट एक बार ऐसे करो, दूसरे बार तुम सेकंड टाइप भी कर सकते हो, एक बार ये वाला ऑपरेशन एक बार ये वाला ऑपरेशन, और सेम टाइप ये भी कर सकते हो. आफ्टर ऑल बोला गया है कि ये जो इनका जो मैक्सिमम रहेगा, मैक्सिमम ऑफ ऑल ए वन ए टू आपको जितने एलिमेंट्स होगा उसको तुमको हमको मिनिमाइज करना है. इनपुट फॉर्मेट में बोला गया है कि टी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, यहाँ पे एन एरे है, यहाँ पे नंबर ऑफ
A1 से T n number of elements है. Then array of A है from 1 to n. And then there is B array from 1 to n. We have to minimum of maximum. तो यहाँ पे एक टेस्ट केस भी वो देख लेते हैं. पहले क्या बोला गया था कि 3 और 5 A और B का वैल्यू है, और यहाँ पे B का बोला गया था कि फर्स्ट नंबर ऑफ इवेंट्स इसका 1 है और इसका 2 है. तो एक के लिए मैं यहाँ पे क्या किया कि पहले वाला 3 को +1 करके 4 कर दिया. सेकेंड टाइम क्या किया कि 5 को 1 किया, 6 हो गया. देन हम इसको पूरे को मिनिमम करना है. हमने यही चाहते कि ये वाला इसको बढ़ाए, मतलब इसको 2 बढ़ाए, क्योंकि हम यहाँ पे आ गए. एक वाला ऑपरेशन इसके लिए हो गया, फिर इसके लिए एक ऑपरेशन बचा, इसके लिए एक ऑपरेशन बचा. एक इसके सेल्फ वाले के लिए मैं एक इंक्रीज किया हूँ, और इसके ये क्या कर रहा हूँ कि मैं दूसरे वालों को मतलब +2 कर रहा हूँ. यहाँ पे देखो, इसको +2 कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं ये नहीं करता, अगर मैं ऐसा करता कि इसको भी बढ़ा देता, तो क्या होता, 4 और 7 हो जाता. तो इसका मैक्सिमम क्या हो जाता, 7 हो जाता ना. देखो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं. वहां पे क्या था कि 4 पहले क्या था, 3 और 5 था. मैंने इसको एक पहले इसके एक था और इसका 2 था, मतलब नंबर ऑफ यहाँ के एक बढ़ा के मैंने 4 कर दिया, और 4 और 5 हो गया. एक इसका एक हो गया, और यहाँ पे 2 बचा. और इस वाले पे पहला वाला जो टाइप ऑपरेशन था वो मैं लगा रहा हूँ. तो क्या इसको खुद को 1 बढ़ाएगा, राइट, 4 और 6. और यहाँ पे एक हो गया, एक और बचा है. अगर मैं ऐसा करता, यहाँ पे देखो मेरे पास 2 चॉइसेस है, मतलब एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा हूँ. अगर मैं इसको इसको यही वाला ऑपरेशन करता तो क्या था, 4 और 7 होता. अब इस दोनों में से मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है, 7 है ना. अब देखो, अगर मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूँ, मतलब सेकंड वाले लेके दूसरे वाले को +2 कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, 6 और 6 होगा. यहाँ का मैक्सिमम क्या है, 6 है ना. तो इस दोनों में से मिनिमम क्या है, 6 मिनिमम है ना. मतलब ये दोनों का मैक्सिमम मिनिमम होना पड़ेगा. तो दिस इज द ऑप्टिमल. मेरे को 6 मिनिमम आ गया, ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा. तो इज दिस क्लियर? ओके. देखो, ये जो जब भी अगर तुम लोग बाइनरी सर्च वगैरह कुछ पढ़े हो, या फिर कुछ किए हो कहीं भी स्टैंडर्ड कुछ, ये भी जो भी चीज होता है ना, लाइक मिनिमम ऑफ मैक्सिमम, मिनिमम ऑफ मैक्सिमम, आई मीन मीन ऑफ मैक्स एंड मैक्स ऑफ मीन, ये बहुत स्टैंडर्ड चीज होता है. मतलब ये बाइनरी सर्च का बहुत ही एक मतलब बहुत ही फेमस और बहुत ही स्टैंडर्ड चीज है. तो जब भी तुमको मिनिमम और मैक्सिमम मीन देखो, तो तुमको समझ लेना पड़ेगा कि बाइनरी सर्च का ही होगा. इफ हैव यू गाइस स्टडीड बाइनरी सर्च? ओके, ये वाला केस भैया देख रहे हो जहाँ के मिनिमम और मैक्सिमम और मिनिमम वाला क्वेश्चन होता है. नहीं भाई. नहीं देखे अभी। ओके. ओके. तो अब मतलब ये बहुत फेमस प्रॉब्लम्स होते हैं. इफ यू प्रैक्टिस देन यू विल अंडरस्टैंड दैट. अगर कभी भी ऐसा कुछ हो जाए तो हमको बाइनरी सर्च ही लगाना पड़ेगा. ओके. अच्छा ठीक है, बाइनरी सर्च में क्या क्या होता है बताओ एक बार. बेसिकली क्या होता है, मतलब मेरे को एक रेंज पे सर्च करना होता है ना. एक हाँ, मेरे एक पास लो सॉर्टेड होता एरे है. होता है। हाँ, एक लो होता हाँ, है, सॉर्टेड एक होता है. हाई होता है। हाँ, सॉर्टेड होता है. एक मेरे पास रेंज होता है, लो पास से पास लेके. चेक कर, लेफ्ट राइट. हाँ, या फिर जो भी चलो, लेफ्ट राइट यूज कर सकते हो, और मतलब और एक मिड लो होता है, और हाई जो यूज कि कर सकते हो. कैलकुलेट करते हैं। हाँ हाँ, वो ये करता है. फिर एक मिड वैल्यू आता है, उसके बेसिस पे हम एक पोर्शन डिस्कार्ड करते हैं, दूसरे पोर्शन को ले लेते हैं. फिर इतना रिमेनिंग का ऐसा करते हैं. ये कब तक करते हैं, जब तक वो चलता रहता है, फिर लो लेस देन हाई, या फिर तुम जो भी बोल सको, तब तक वो रेंज रहता है, हम करता रहते हैं. ये सुन नो. यस। हाँ, ओके. तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले तो हमको देखना पड़ेगा कि बाइनरी सर्च तो लगाना है, लेकिन इसके हम लिए रेंज क्या क्या रख सकते हैं हम. एक बात बताओ, जो इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है. एक बार सोच के बताओ कि मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, कि इससे नीचे तो होगा ही नहीं आंसर. क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जब ए के जो जो वैल्यूज था, मतलब ए एरे में जो जो वैल्यूज था, ए एरे था ना, उसमें जो जो वैल्यूज था,
उनका जो मैक्सिमम मेरे को मिल गया, उनका मैक्सिमम अगर मैं कुछ भी कर सकूं, उससे तो छोटा मैं कर ही नहीं सकता ना। उससे वैल्यू बढ़ेगा ज्यादा जरूर किसी का, क्योंकि अगर कोई भी वैल्यू मेरे को एक मैक्सिमम मिल गया, या तो मैं दूसरे वालों को बढ़ाऊंगा, कुछ करूंगा ना, कोई मतलब कम तो नहीं हो सकता अगर कुछ मैक्सिमम मिल गया। वो जो आखिरी में आंसर आएगा मेरा, मतलब मिनिमम में ये वैल्यू तो रहेगा ही रहेगा। तो इससे कम तो मैं कर ही नहीं सकता। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि दिस इज द मिनिमम वैल्यू इज ऑफ द रेंज? मिनिमम वैल्यू ये है कि अगर मतलब मिनिमम वैल्यू इज द मैक्सिमम ऑफ द एरे। क्या मैं ये बोल सकता हूँ? यस भैया। हाँ। और देखो, और ये हो गया हमारा मिनिमम वाला वैल्यू। मैक्सिमम क्या हो सकता है एक बार सोचो। मैं हाईएस्ट एक वैल्यू को कितना बढ़ा सकता हूँ? एक बार मैं क्या देख रहा था कि मैं एक एक वैल्यू को मैक्सिमम प्लस 2 भी बढ़ा सकता हूँ। मतलब अगर ऑप्टिमली मैं जितना दूर सोच सकता हूँ सोच सकता हूँ, एक एक वैल्यू को मैं प्लस 2 बढ़ा सकता हूँ। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? इसका जितना मेरा इसमें मेरे को जितना मैक्सिमम मिल गया, ठीक है, जो मिनिमम जो लो वाला वैल्यू लूंगा मैं, जो जिससे ये रेंज स्टार्ट होगा, इसके साथ अगर मैं कितने बार, और ये जो प्लस टू कर सकता हूँ मैं, ये कितने बार कर सकता हूँ कि हर एक, देखो यहाँ पे क्या बोला गया था, हाँ, मतलब बी के जितने भी बी अरे का बहुत सारा टाइप था, और हर टाइप में बहुत सारे नंबर ऑफ मेरे इवेंट्स था। हर एक इवेंट के लिए मैं कर सकता हूँ ना कि एक इवेंट के लिए मेरे पास दो दो चॉइस थे ना, कि उसको उसके कॉरेस्पॉन्डिंग को एक बढ़ाओ, दूसरे को कॉरेस्पॉन्डिंग प्लस टू बढ़ाओ। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि ऑप्टिमली सोच लेते कि किसी एक वैल्यू को मैं हर बार दो दो बढ़ा के ही रहूंगा। अगर तुम ऐसे थोड़ा ज्यादा डीपली सोचोगे तो ऐसा होगा कि खुद के लिए इसको दो नहीं सोच सकता। मैं एक रेंज ले रहा हूँ ना कि उसके अंदर होगा, बाकी तो मैं बाद में फंक्शन लगाऊंगा। क्या हो सकता है कि इस यहाँ पे जितने सारे इवेंट्स है, सबका सम, मान लो यहाँ पे जितने सारे इवेंट्स है सबका सम, और हर सम के लिए मैं टू टू अगर उसको मल्टीप्लाई किया, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये मेरा मैक्सिमम रेंज हो सकता है। यस। इज दिस क्लियर? हाँ, ओके। तो मेरे को अभी मिल गया कि मैक्स रेंज मिल गया कि मिनिमम क्या होगा और मैक्सिमम क्या होगा, राइट? रुको रुको, रुको, लिखते हैं। मेरे को तुम लेफ्ट राइट बोल रहे थे, वो भी कर सकते हो, या फिर मतलब लोअर हाई, मतलब जो तुमको कंफर्टेबल हो जाए। तो यहाँ पे मेरे को एक रेंज मिल गया, मिड और हाई, ठीक है। मैं क्या करना चाहूंगा कि देखते हैं कि हमको क्या करना कि जो मिड का वाला जो मतलब जो मेरे को आंसर को जितना मिनिमम हो सके मेरे को करना होगा, राइट? तो मान लो हमको बाइनरी सर्च में हम क्या करते हैं, लोअर हाई रहता है, यहाँ पे एक मिड लेते हैं हम, उसके बेसिस पे हम कुछ चेक वगैरह करते हैं, फिर उसके लिए हम एक कार्ड डिस्कार्ड करते हैं, मतलब एक पोर्शन, एक आधा हिस्सा डिस्कार्ड करते हैं। मान लो हम मिड का है, मतलब लो प्लस हाई बाई टू हो सकता है, या फिर तुम अगर थोड़ा सेव जाओ तो मतलब या तो तुम लो प्लस हाई बाई टू भी लिख सकते हो, या फिर ये एक ज्यादा हमारा ये भी है कि तुम लो प्लस हाई एच और एल लिख रहे हो, हाई माइनस लो बाई टू, ऐसे भी कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे पास कभी कभी हो सके कि इनके ओवरफ्लो वगैरह हो जाए, तो ये ज्यादा सेफ है। अगर तुम माइनस करोगे ना तो कभी भी ओवरफ्लो नहीं आएगा। सो इट इज अ गुड प्रैक्टिस कि तुम ऐसे लिखो। मेरे पास एक मिड वैल्यू आ गया, तो क्या मैं क्या करूंगा, मेरे पास एक रेंज ऑफ वैल्यूज है, इसके अंदर ही मेरा आंसर लाई कर, मेरे को पता है मेरे पास मिड वैल्यू हो गया। मैं मिड वैल्यू को कुछ चेक करूंगा, कुछ फंक्शन से मैं चेक करूंगा कि देखता हूँ कि क्या ये मेरा मिड वैल्यू पॉसिबल है। क्या मैं कोई भी एलिमेंट को, मतलब जो मिनिमम और मैक्सिमम होगा, क्या मैं उसको मैं मिड के इक्वल ला सकता हूँ? अगर मैं ला सकता हूँ, ये हो गया, तो क्या ये तो आंसर में होगा ही होगा। तो मैं क्या करूंगा, और भी चाहूंगा ना कि छोटा हो जाए, मतलब और भी छोटे वैल्यू के लिए ट्राई करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, जो ये वाला पोर्शन रहेगा, राइट वाला पोर्शन रहेगा मिड से लेके यहाँ तक, मैं डायरेक्ट हाई को लेके यहाँ पे लेके आ जाऊंगा, और ये वाला पोर्शन डिस्कट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा मिड हो गया, हाई को यहाँ पे लेके आ जाऊंगा, और ये वाला पोर्शन डिस्कट कर दूंगा। और मान लो कभी ऐसा हो जाए कि ये वाला मेरा मतलब नहीं हो गया, कि वी कैन नॉट मेक द मैक्सिमम मिनिमम और आंसर इक्वल टू मिड, तो हमको क्या करना पड़ेगा, मैं इतना बड़ा एफर्ट, मतलब इतना छोटा नहीं कर सकता, तो हमको ट्राई करना पड़ेगा कि थोड़ा और बड़ा वैल्यू के लिए कोशिश करनी, क्योंकि हम हमेशा क्या कर रहे हैं, ट्राई करें कि वैल्यू को जितना हो सके। अगर एक मेरा वैल्यू आंसर में मिल गया, तो ये तो होगा होगा ही होगा।
मैं और क्या कर रहा हूँ, एक तो मैंने राइट वाले पोर्शन डिस्कस करके ट्राई कर रहा हूँ कि लेफ्ट हाफ में जितना है उसमें थोड़ा और स्मॉलर हो सके, उसके लिए मैं कोशिश करूँ और फिर सर्च करूँ। अगर ये नहीं हुआ तो हमको क्या, और छोटा वैल्यू तो पॉसिबल है ही नहीं, हमको वैल्यू बड़ा करके ट्राई करना ही पड़ेगा। तो मिड में पॉसिबल नहीं है तो क्या में जाना पड़ेगा, मेरे को इस हाफ में जाना पड़ेगा, राइट? सो इज इट क्लियर? ओके, तो ये वाला समझ में आ गया। अब देखो कि अब पूरा सब कुछ हमारा हो गया। अब हमको यही देखना है कि मतलब हम फंक्शन कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इसको हम इतने बार एक फंक्शन में हम दिस वैल्यू इज इफ इट इज फिजिबल और नॉट, हमको यही देखना है कि इफ इट इज फिजिबल और नॉट। हम क्या बेसिकली हम ये ट्राई करेंगे कि मेरे पास कुछ नीड होगा, मतलब कुछ मेरा नीड होगा और कुछ मेरा कैपेसिटी होगा। मान लो एक कुछ वैल्यू एक्स हो गया, फिर वाई हो गया। मान लो एक्स मेरा नीड है, वाई मेरा कैपेसिटी है। अगर कि कैपेसिटी अगर नीड से बड़ा होता है, नीड मेरा ये है, नीड से तो मिनिमम कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा ही ना, तो ही तो मैं इसको सप्लाई कर पाऊंगा। तो मैंने यही देखूंगा कि हर पूरे एरे को मैं हर बार के लिए, हर मीट के लिए एक वैल्यू मेरा मीट आ गया, उसके लिए मैं पूरा मतलब वी को ट्रैवल करूंगा और देखूंगा कि अगर मैं इसको कर सकता हूँ कि नहीं। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, नीड और जो ये है, एक तो मेरे पास नीड है और दूसरे मेरे पास कैपेसिटी है, तो मैं इन दोनों को कैसे कर सकता हूँ एक बार देखो। आई मीन क्लियर अभी तक जो हो रहा है? तो फिजिबिलिटी हम कैसे चेक कर रहे हैं, नीड और कैपेसिटी हो गया, यस हम भैया। एक वैल्यू को, हाँ ओके। देखो हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास क्या है, बी एरे था ना और ए एरे था। नीड क्या है, हम बी को मतलब ए को कुछ वैल्यू ये रहेगा, उसको हमको मीट ये वाला तक लेके जाना है, ठीक है? तो क्या हो सकता है कि मान लो, और इसके लिए इसके कॉरस्पॉन्ड कुछ भी रहेगा, हम इतने वैल्यू तक इसको मैक्सिमम इंक्रीज कर सकते हैं इसके खुद के लिए, राइट? तो हम इसको अभी तक मैं कितने तक बढ़ा के रख सकता हूँ, मतलब नीड कितना है, मतलब बढ़ा के रख सकता हूँ यहीं तक कि बी, मतलब जो इसका वैल्यू रहेगा मैक्सिमम तो मैं यहीं तक ही बढ़ा सकता हूँ ना, जो इसका वैल्यू रहेगा बी का उस कॉरेस्पॉन्डिंग का। और मैं कहाँ तक बढ़ाना चाहता हूँ, मिड जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वो रहेगा एरे को मैं करना चाहता हूँ। तो मिड यहाँ पे मैं इसको चेक कर रहा हूँ, मिड माइनस यही वैल्यू तक, मतलब ये दोनों का जो मिनिमम होगा वहां तक मैं इसको, मतलब ये मेरा ये अभी तक मैं इसी ए को, इस वाले को मैं यहाँ तक एटमोस्ट अभी तक तो मैं इस पर बढ़ा सकता हूँ ना, यहाँ पे जो भी मिनिमम रहेगा मैं ये वैल्यू को इस तक लेके जा सकता हूँ। इज इट क्लियर? क्योंकि इसका, इज इट क्लियर? ओके, हैंडराइटिंग के लिए ओके। तो मैं यहाँ पे मैं बी को मतलब ए को थोड़ा बढ़ा दिया, ठीक है? मतलब ये इसको भी मैंने कुछ ये कर दिया, तो सेल्फ करके कुछ लिख दिया थोड़ा वेरिएबल, मतलब वेरिएबल नेम नॉट इम्पोर्टेंट, कुछ भी ऐसा। इसको मैं एक वेरिएबल असाइन कर दिया कि अभी तक मेरे पास ये है, और मेरे पास नीड क्या है, मेरे को अभी तक बी तक मैं जितना जा सकता था, ठीक है? मतलब बी तक, यहाँ तक तो मेरा यहाँ पे जो भी मिनिमम रहेगा उसको तो मैंने ले लिया, ठीक है? अगर ये मिनिमम रहेगा तो मैं इसको ले लिया, ये मिनिमम रहेगा तो इसको ले लिया। अगर ये मिनिमम होता तो मैं इससे ज्यादा जा ही नहीं सकता। अगर मान लो कुछ ऐसा हो जाता कि ये मिनिमम होता, ठीक है, तो क्या मेरे को इससे ज्यादा भी मेरे पास कुछ नीड है ना, क्योंकि मैं जा सकता हूँ। और वो नीड क्या हो सकता है, यहाँ पे लिखते हैं थोड़ा इसको, बी, मतलब नीड को मैं लिखता हूँ कि बी माइनस जो ये वेरिएबल था सेल्फ, ठीक है? एक बार एक्सप्लेन करते बाद में पूछ रहा हूँ। यहाँ पे ऐसा कुछ आ गया कि एक एक वेरिएबल मैंने उसको असाइन कर दिया, नीट करके कुछ ऐसा, जो भी बोलो, या फिर जो एक्स लिख रहा था एक्स को मैंने असाइन कर दिया, एक्स को ऐसा कर दिया। और क्या हो सकता है, मैं दूसरे वैल्यू को +2 से बढ़ा सकता हूँ ना। अगर मान लो +2 से बढ़ा सकता हूँ, वो क्या होता है, जब फॉर द एलिमेंट दूसरे को, अगर फॉर अदर एलिमेंट तुम इसके बारे में सोचो तो क्या, वो 2 से डिवाइड हो जाएगा ना जब उल्टे सोचोगे, फ्रॉम अदर्स के लिए फॉर दैट एलिमेंट। तो उसके लिए क्या होगा, टोटल कितना था, मेरे को मिड तक बढ़ाना था, राइट?
और मैं कितने तक आ गया था, मैं आ गया था AI तक, मतलब AI मिड माइनस AI मेरे को कितने तक ही, मतलब मिनिमम जो वैल्यू था मिड माइनस AI का, इसका ये था। और मेरे को और क्या बड़ा मतलब चाहिए, जो मेरे पास ऑलरेडी है, ऑलरेडी सेल्फ मेरे पास था ही ना। तो क्या है, ये इतना हो गया। और अगर तुम ऑपोजिट करके सोचोगे, तो मैं अगर इसको 2 से डिवाइड करूंगा, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये मेरा ओवरऑल कैपेसिटी है? ये कैपेसिटी और ये वाला समझ में आया? ओके। तो वही हो गया कि मेरे पास वाई आ गया, एक्स आ गया। अब मैं देखूँ कि कैपेसिटी क्या है, वाई है। अगर वाई ग्रेटर देन मेरा एक्स है, तो मेरा हो गया कि ये वाला फिजिबल है, और अगर नहीं है तो फिजिबल नहीं है। सो इट इज एज सिंपल एज दैट। So is the explanation clear? Okay. So एक बार इसको थोड़ा ये करते हैं, मतलब इसको थोड़ा रैप अप कर, मतलब बोल दे कि क्या क्या मैंने हमने बेसिकली वर्क किया। थोड़ा हैंग हो रहा है। थोड़ा इसको मतलब एक बार जस्ट ओवरव्यू दे देते हैं इसका, क्या क्या हम बेसिक लॉजिक क्या है इसका। लॉजिक बाद में कोड तो तुम वेरिएबल वगैरह तो कुछ बड़ा चीज नहीं है। कोड लॉजिक यही था कि पहले मेरे को ऐसे एक let me bring another next okay ऐसे। Just a minute, I will shift to another. हाँ, यहाँ पे आ गया। क्या था मेरे पास, बेसिकली मैंने एक रेंज डिफाइन किया लो से लेकर हाई तक। और ये वाला तुम मतलब प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये बहुत ही फेमस चीज है। मिनिमम और मैक्सिमम, मैक्सिमम मिनिमम जो भी होता है, जब भी होता है ऐसे करते हैं। वहाँ पे बेसिस पे मेरे पास एक मिड रहेगा, उसको हम इसको हम चेक करेंगे। उसके बेसिस पे अगर कंडीशन लगाएंगे, दो मतलब कौन सा वाला पार्ट मेरे को डिस्कार्ड करना है, फिर ऐसे करते करते जो आंसर रहेगा वहाँ पे हम इसको चेक कर लेंगे। सो ओवरव्यू भी मतलब इज दिस क्लियर है? ओवरव्यू हो गया, आई मीन समझ में आ गया ना ओवरऑल? ओके। अभी कोड देखते हैं इसका। देखो बेसिकली हमने जो भी बोला था कि नंबर ऑफ एन था, हम एरे का इनपुट ले लिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन हो गया, नंबर ऑफ बी का भी ले लिया। हम लो का वैल्यू क्या है, जो मैक्सिमम वैल्यू था ऑफ द एरे। और इसका सम, पहले हम बी का पूरा सम निकाल लिया। फिर उसका अपर बाउंड क्या था, मतलब मैक्सिमम वैल्यू तक कहाँ पे जा सकते थे। इसका जो वैल्यू था मैक्सिमम प्लस 2 इंटू सम था ना, वही किया। फिर आंसर को कुछ भी से हमने इनिशियलाइज कर दिया। फिर हमने बाइनरी लूप लगा लिया यहाँ पे। मैंने लो प्लस आई बाई 2 लिखा, तुम वो वाला भी ज्यादा प्रेफर कर सकते हो, बिकॉज दैट इज अ बेटर बेटर प्रैक्टिस। यहाँ पे हम एक फंक्शन से चेक कर रहा हूँ, अगर इसका वैल्यू ये है, आंसर में इसको स्टोर कर रहा हूँ, और ये राइट वाला इसको डिस्कार्ड कर रहा हूँ। नहीं तो हम नेक्स्ट वाला लेफ्ट वाला एक पोर्शन को डिस्कार्ड करो, आंसर प्रिंट करो। और ये जो फंक्शन था, हाँ यहाँ पे एक वैल्यू बोलना है कि तुम अगर लॉन्ग लॉन्ग वगैरह कुछ लोगा, तो इसमें मैं भी ट्राई किया था, तो लॉन्ग लॉन्ग वगैरह से ना मतलब आंसर रॉन्ग आंसर आएगा, क्योंकि इंटू वन टू लॉन्ग लॉन्ग 64 बिट्स का होता है ना, और ये होता है इन ये वाला जो वेरिएबल होता है, तो 128 बिट्स का होता है। मतलब उससे कुछ कुछ हो रहा है कि ओवरफ्लो हो रहा है, तो हमको लॉन्ग लॉन्ग से भी कुछ बड़ा चाहिए, तो इसलिए मैंने ये इंटू 128 वाला यूज किया। बाकी ओवरऑल सेम है। ए और बी और मिड मैंने इस फंक्शन को पास किया हूँ। इसको सेल्फ ऐसे मिनिमम कर लिया। अभी, जो नीड है उसको ऐसे ऐड कर लिया, कैपेसिटी में भी ऐसे डिवाइडेड बाई 2 से ऐड कर लिया। और अगर ये ग्रेटर देन हो गया तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। So is this clear? Yes, yeah. Is the code clear? Yes, yeah. Okay. Utkarsh, is this clear? Yes, Bhaiya.
ऑलमोस्ट। ओके ओके ओके। अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो इंट 128 वाला वो खुद से पढ़ सकते हो। तो फिर हम रिसर्च मतलब ज्यादा कुछ नहीं, बस इंट अदर टाइप ही है। तो ये 128 बाइट का, तो बाकी कुछ भी अलग कुछ नहीं, तो ये कर सकते हो। So this is for today. If you have any doubt or anything, you can tell me if you have any doubt or anything. Do you have नो any doubt? डाउट भैया, नो डाउट। Okay, okay. तो तुम लोग रेगुलरली कॉन्टेस्ट दे रहे हो ना? यस भैया। हाँ भैया। हाँ। तुम लोग कौन से मेंटरशिप ग्रुप में हो, मतलब सीनियर्स कौन कौन है हमारे यहाँ के? उत्कर्ष, शुभम। मैं G9 में। मतलब मेरा तुम्हारा मेंटर कौन है, भैया या फिर दीदी? मेरा G4 है। ओके ओके, ठीक है। पर वो ग्रुप ठीक पे है, और मतलब ऐसे देते रहना। होता और नहीं है। डीएसए वगैरह का कुछ डाउट हो, मतलब कहाँ कुछ प्रैक्टिस वगैरह तुम कैसे कर रहे हो तुम लोग, कि ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो कुछ जगह से, फिर ऐसे कुछ? हाँ, हम ड्राइवर का स्ट्राइवर भी का शीट देख रहे कर थे। रहा हूँ। क्या क्या, सीपी एक बार फिर से बोलो। एक बार फिर से बोलो उत्कर्ष, मेरे को सुनाई नहीं दिया शायद। ड्राइवर का भी शीट कर रहा हूँ वो। हाँ, तुम इस टाइवर का ये शिफ्ट करोगे ना, सीपी। ये जो मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम का है, वो ऐसे बहुत सारा कुछ करे, मतलब इसका बहुत सारा भर भर के करा है। शुभम कहाँ से कर रहे हो? हम भी वहीं से कर रहे भैया। हाँ, तुम देखो, हम भी स्ट्राइवर से ही करते हैं ये वगैरह। मतलब दो चैनल बहुत अच्छा है, तो स्ट्राइवर का देख सकते हैं, फिर कोड हेल्प बट दोनों ही अच्छे। स्ट्राइवर का ये है कि उसका बहुत सब कुछ एकदम सिस्टमेटिक वे में, बहुत मतलब अच्छे से रखता है उसने, एक जगह में सब कुछ मिल जाएगा ही है। तो स्ट्राइवर का तो देखो, मतलब मैं तो बोलूंगा कि ट्यूटोरियल वो खुद से पहले ट्राई करो, उसके बाद वो जैसे बोलता है कि पहले खुद ट्राई करो उसके बाद कोड देखो। और बाइनरी सर्च में स्ट्राइवर भी ऐसे, ये सब ऐसे क्वेश्चन वगैरह सब करा हुआ है। तुम अगर शीट वगैरह ट्राई करोगे तो तुमको ये सब क्वेश्चन ऐसे मिलेगा। ठीक है, तो ओके कीप भैया। गोइंग, कीप प्रैक्टिसिंग। भैया और TLE 31 भी तो अच्छा ही है ना। हाँ अच्छा है, वो प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल करो, अच्छा तो बिल्कुल भी ऑब्वियसली अच्छा है। उसका तुम्हारा 800 से लेके 1600 के, मतलब सारे रेटिंग का 31 वाला हो जाए। तुम ऐसे भी कर सकते हो कि एक रेटिंग का सारे ना उठा के थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड, पहले इसका कुछ कर ले फिर इसका कुछ कर लिया, ये कर सकते हो। और ये तो, और एक भी अच्छा। चीज ये करो कि एक कॉन्टेस्ट हो जाने के बाद ना, जो क्वेश्चन तुमसे हुआ नहीं उसको बिल्कुल सॉल्व करना। जैसे ये क्वेश्चन आज नहीं हुआ था ना, इसको तो पक्का सॉल्व करना है, ठीक है? तो एक क्वेश्चन मिनिमम ऐसे कर लेना। ओके भैया। और वो जो ग्रुप है G4 उसमें कोई एक्टिविटी नहीं होता है मतलब या कोई और भी मतलब ग्रुप है क्या? हाँ, एक्टिविटी मतलब पीओटीडी, मेरा मतलब प्रॉब्लम ऑफ द डे वगैरह ऐसा कुछ नहीं आता? नहीं आता है, इस नहीं। पे कुछ नहीं आता। अच्छा ठीक है मेरे ठीक में है, मैं आपसे ऐसे कर दूंगा कि हर, तो उसका कौन सा ग्रुप था, ग्रुप 7? ना ग्रुप 9 भवानी दीदी तो तुम्हारा और ग्रुप में क्या आयुष क्या भैया मतलब और एक्टिविटी होता है? न- उत्कर्ष, नहीं। एक्टिविटी होता है तुम्हारे ग्रुप में? नहीं मतलब ये थोड़ा बहुत कभी कभी होता है, जैसे